اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا کردار دیکھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور 1-2 سرکردہ افراد نے بھی خالد رضی اللہ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دی۔ ہیرا کے ایک سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ہیرا آپ کا ہے، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعے دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں، اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا۔ پھر پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ مجوسی سردار نے کہا، ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا۔ ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جرری سمجھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4 قلعوں کی جو معلومات بتائی گئیں وہ یوں تھیں۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام قصر ابیز تھا، اس کا قلعہ دار ایاس بن قبسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر الادسین تھا، عدی بن عدی اس کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن اور قلعہ دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر تھا۔ قلعے کا نام قصر ابن بقیلہ تھا، جبکہ اس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بن بقیلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر ابیز پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الازور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو قصر الادسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بقیلہ مسنہ کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے 4 قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعوں سے کورا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ قصر ابیز کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا مہ برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں، اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں 2-2 3-3 تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلائیں۔ باقی 3 قلعوں کی کیفیت بالکل اسی جیسی تھی۔
ईसाई बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे। मुसलमान घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए दीवार के करीब जाते और दौड़ते घोड़ों से तीर चलाकर आगे निकल जाते। इस तरह मुसलमान सवारों को ये फायदा हासिल होता था कि वो तीरों का निशाना बनने से बच जाते। उसके बावजूद सवार तीरों से जख्मी हुए। बाज मुजाहिदीन ने यहाँ तक बेजिगरी का मुजाहिरा किया कि वो दरवाजों तक चले गए और उन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किलों के दिफा में लड़ने वालों ने उससे ज्यादा बेजिगरी के मुजाहिरे किए। दीवारों से तीर बरसाने वाले जितने तीरंदाज मुसलमानों के तीरों से गिरते थे, उतने ही ताजादम तीरंदाज उनकी जगह ले लेते। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु हर किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाते, सूरत हाल का जायजा लेते और मुजाहिदीन को यही एक बात कहते कि चारों किले शाम से पहले पहले सर करने हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे रहकर हुक्म नहीं देते थे, बल्कि आगे दीवारों के करीब वहां तक जाते रहे जहां ऊपर से उन पर तीरों की बौछारें आ रही थी। वो 2 किलों के दरवाजों तक भी पहुंचे और तीर उनके इर्द गिर्द उड़ते रहे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इसलिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि उन्हें खतरा नजर आ रहा था कि अज़दाबा अचानक किसी तरफ से फौज के साथ नमूदार होगा और अकब से हमला कर देगा। वो मुल्क आतिश परस्तों का था, जमीन उनकी, फौज उनकी और वहाँ के बाशिंदे उनके थे। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और वहाँ उनके लिए कोई पनाह नहीं थी। ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की गैर मामूली जंगी फहम फरासत और उनके सालारों की बेमिसाल जुर्रत थी कि वो खतरों में गिरते चले जा रहे थे, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं लेते थे। फारिस की फौज के लिए वो दहशत बन गए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इस खुशफहमी में मुब्तला होने वाले सालार नहीं थे कि दुश्मन जो शिकस्त खाता और पसपा होता चला जा रहा है, वो जवाबी वार नहीं करेगा। वो उन 4 किलों को या फंदा या जाल में दाना समझ रहे थे। उन्होंने देखभाल के लिए दूर दूर आदमी भेज रखे थे जो बुलंद जगहों या दरख्तों पर चढ़कर हर तरफ देख रहे थे। उनके लिए यह हुक्म था कि दूर से उन्हें कोई फौज आती नजर आए तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को फौरन इत्तला दें। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का ये पैगाम कि वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, हर एक सालार और हर एक सिपाही तक पहुंच गया था। और ये भी कि अल्लाह के शेरो हिम्मत करो, कले ले लो, दुश्मन आए तो उस पर तुम्हारे तीर कलों की दीवारों से बरसे। मुसलसल लड़ाइयों, कूच और पेशकदमी के थके हुए मुजाहिदीन अपने जिस्मों को जैसे भूल ही गए थे। वो अब रूहानी कुव्वतों से लड़ रहे थे, एक दूसरे को पुकारते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दुश्मन को ललकारते थे। उनके तीर नीचे से ऊपर जा रहे थे। कलों के अंदर ये आलम था कि दीवारों से जख्मी तीरंदाजों को उतार रहे थे। ज्यादातर को तीर चेहरों, आंखों और गर्दनों में लगे थे। उनकी चीखों पुकार से उनके साथियों के हौसले टूटने शुरू हो गए। मुसलमानों की ललकार और उनके नारे कलों के अंदर भी सुनाई दे रहे थे। उनसे कलाबंद लोगों पर खौफ तारी हो रहा था। वो समझ रहे थे कि कलों को बहुत बड़े लश्कर ने महासरे में ले रखा है। मौरखों के हवाले से मोहम्मद हुसैन हैकल ने लिखा है कि चारों कलों में पादरी और दीगर मजहबी पेशवा थे। उन्होंने देखा कि दीवारों से इतने ज्यादा जख्मी उतारे जा रहे हैं तो वो कलादारों के पास गए। तारीख में सिर्फ एक कले की अंदरूनी कैफियत जरा तफसील से मिलती है। ये कला कसर इब्ने बुकीला था, जिसका कलादार अब्दुल मसीह बिन अमर बिन बुकीला था। अब्दुल मसीह के मुताल्लिक ये बताना जरूरी है कि वो कोई मामूली सा कलादार न था। उसे इराक का शहजादा भी कहा गया है। इराक पर आतिश परस्त काबिज हो गए, मगर अब्दुल मसीह के बाप दादा ने ये कला अपने पास रखा। शहनशाह फारिस की तरफ से उसे कोई इख्तियार हासिल न था, लेकिन वो खुद मुख्तार बना हुआ था। उसने बाकी कलादारों को भी अपने मातहत रखा हुआ था। वो गैर मामूली तौर पर दानिशमंद था। वो जुर्रत में भी बेमिसाल था। उसकी सबसे बड़ी खूबी हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी थी। वो ज़ईफुल उम्र हो चुका था, लेकिन जज्बे और हौसले के लिहाज से वो जवान था। उसने नौशरवां आदिल का जमाना भी देखा था। इससे अंदाजा होता है कि उसकी उम्र खासी ज्यादा थी। खुशगुफ्तारी और ज़राफत की वजह से नौशरवां अब्दुल मसीह को बहुत पसंद करता था। उसने नौशरवां आदिल से कहा, नौशरवां, मैं और मेरे कुछ सरदार तुम्हारी इताअत कबूल नहीं करेंगे। हम अपने कलों में रहेंगे, इससे शायद तुम्हें भी कुछ फायदा हो। नौशरवां आदिल ने कहा था, मैं तुम्हें और तुम्हारी पसंद के सरदारों को 4 कले देता हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद फारिस में तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा मैं बता नहीं सकता। अब्दुल मसीह ने कहा था, तुम्हारे मरने के बाद फारिस की शहनशाही का जवाल शुरू होगा। नौशरवान ने कहा था, इतनी अच्छी बातें करने वाली जबान से मैं ऐसी बात नहीं सुन सकता इब्ने बुकीला। क्या तू मुझे बद्दुआ दे रहा है या फारिस के जवाल का बायस तू खुद बनेगा? अब्दुल मसीह ने कहा, दोनों बातें नहीं। तू आदिल है, तेरे बाद अदल भी मर जाएगा और पीछे शहनशाही रह जाएगी।
तीसरी या चौथी नस्ल तेरा नाम डुबो देगी। फिर फारिस की सरहदें सुकड़ने लगेंगी और यहाँ कोई और कौम आकर हुक्मरान बनेगी। नौशरवान आदिल ने कहा, मानने को जी नहीं चाहता। फारिस एक ताकत का नाम है। अब्दुल मसीह ने कहा था, गौर से सुन आदिल बादशाह, जिस दिमाग में शहनशाही घर कर लेती है उस दिमाग से अदलो इंसाफ निकल जाता है। तख्त पर बैठकर रियाया की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। तेरे बाद आने वाले अगर फौज पर भरोसा करके रियाया का ख्याल नहीं करेंगे तो वो अपने जवाल को तेज करेंगे। उनसे तंग आई हुई रियाया उनका साथ देगी जो बाहर के हमलावर होंगे। मेरी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं कि तजर्बे की बिना पर बात करूं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आने वाला वक्त फारिस के लिए अपने साथ क्या ला रहा है। अब अब्दुल मसीह की उम्र इतनी ज्यादा हो गई थी कि कमर झुक गई थी, कंधे सुकड़ गए थे, राशा ऐसा कि उसका सर हिलता और हाथ कांपते थे। नौशरवां आदिल की दूसरी नस्ल का शहनशाह शिकस्त के सदमे से मर चुका था और फारिस का जवाल शुरू हो चुका था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर ने आज अब्दुल मसीह और उसके सरदारों के कलों को मुहासरे में ले रखा था और उसकी कलाबंद फौज का हौसला कमजोर होता जा रहा था। उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि दीवार पर जाकर देखता कि मुहासरे की और मुसलमानों की कैफियत क्या है और मुसलमानों की नफरी कितनी है। उसे शायद मुसलमानों की नफरी का अंदाजा नहीं था। मुसलमान सिर्फ 18,000 थे और उन्होंने 4 कलों को मुहासरे में लिया हुआ था, बल्कि बढ़ बढ़कर हमले कर रहे थे। अब्दुल मसीह अपने महल में गया तो 2 पादरी उसके इंतजार में खड़े थे। अब्दुल मसीह ने पादरियों से पूछा, क्या गिरजे में अपनी फतह और दुश्मन की तबाही की दुआएं हो रही हैं? बड़े पादरी ने जवाब दिया, हो रही हैं। और तुम यहाँ क्यों आ गए हो? अब्दुल मसीह ने कहा, जाओ और गिरजे के घंटों को खामोश न होने दो। बड़े पादरी ने कहा, हम अपनी फौज और लोगों को कत्लेआम से और उनके घरों को लुट जाने से बचाने आए हैं। क्या आप नहीं देख रहे कि हमारे कितने सिपाही जख्मी और हलाक हो चुके हैं? क्या आप दुश्मन की ललकार और उसके नारे नहीं सुन रहे? अब्दुल मसीह ने कहा, क्या तुम मुझे ये कहने आए हो कि मैं हथियार डाल दूं? दूसरे पादरी ने कहा, आपकी जगह कोई और कलादार होता तो हम ऐसा मशवरा कभी न देते, लेकिन आप दानिशमंद और तजर्बाकार हैं। जो आप समझ सकते हैं वो कोई और नहीं समझ सकता। हकीकत को देखें, इससे पहले कि मुसलमान कला सर कर लें और कले में दाखिल होकर कत्लेआम और लूट मार करें और हमारी औरतों को अपने साथ ले जाएं, आप कला कुछ शराइत पेश करके उनके हवाले कर दें। ये बहुत बड़ी नेकी होगी। अब्दुल मसीह ने कहा, मुझे सोचने दें। पादरी ने कहा, सोचने का वक्त कहाँ है? ऊपर देखें, मुसलमानों के तीर दीवारों के ऊपर से अंदर आ रहे हैं और वो देखें, जख्मियों को कंधों पर उठाकर ऊपर से नीचे ला रहे हैं। क्या आप देख नहीं रहे कि दीवारों पर और बुर्जों में हमारे तीरंदाजों की तादाद किस तेजी से कम होती जा रही है? ना हक को खून न होने दें। कले के बाहर मुसलमानों के हल्ले और तीरों की बौछारें तेज होती गईं, हालांकि उनके जख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब्दुल मसीह ने पादरियों की मौजूदगी में कासिद को भेजा कि वो कले के दिफा की सूरत हाल फौरन मालूम करके आए। कासिद ने वापस आकर जो सूरत हाल बताई वो उम्मीद अफजा नहीं थी। दूसरे कलों की कैफियत भी ऐसी थी जो ईसाइयों के हक में नहीं जाती थी। कले का दरवाजा खुल गया। एक ज़ईफुल उम्र आदमी घोड़े पर सवार बाहर निकला। उसके साथ 2-3 सरदार थे। उनमें से एक सरदार ने बुलंद आवाज से कहा कि वो दोस्ती का पैगाम लेकर बाहर निकले हैं। उनके पीछे कले का दरवाजा बंद हो गया। अब्दुल मसीह के उस सरदार ने बुलंद आवाज से कहा, हम तुम्हारे सालार से मिलना चाहते हैं। दीवार से तीर आने बंद हो गए थे। मुसलमानों ने भी तीरंदाजी रोक ली। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी ने बताया कि दुश्मन बाहर आ गया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कौन है वो? जवाब मिला, कलादार अब्दुल मसीह खुद आया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उसे कहो मुझे उससे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं, मैं जानता हूँ वो इन सब का सरदार है। उसे कहो कि शाम तक बाकी तीनों कलादारों ने भी हथियार न डाले तो हम उन्हें उस हाल तक पहुंचा देंगे जिसमें वो हमारी हर शर्त कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जब अब्दुल मसीह को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये पैगाम मिला तो वो जान गया कि फतह आखिर मुसलमानों की ही होगी। उसने उसी वक्त अपने सरदारों को दूसरे कलों की तरफ दौड़ाया। दूसरे कलों के अंदर भी यही कैफियत थी जो अब्दुल मसीह के कले के अंदर थी। फौजों का हौसला कमजोर पड़ गया था और लोगों पर खौफ व हरास तारी था। उन कलों के सरदार हथियार डालने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई कलादार ये नहीं चाहता था कि हथियार डालने में वो पहल करे और ये तोहमत उस पर लगे कि हथियार सबसे पहले उसने डाले थे, वरना कोई भी हथियार न डालता। अब्दुल मसीह का पैगाम मिलते ही उन्होंने तीरंदाजी बंद कर दी और तीनों कलादार बाहर आ गए।
उन्हें खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने ले गए। उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु एक घने दरख्त के नीचे खड़े थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन कलादारों से कहा, क्या तुमने हमें कमजोर समझकर हमारा मुकाबला किया था? क्या तुम भूल गए थे कि तुम अरबी हो? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि हम भी अरबी हैं? अगर तुम अजमी होते तो भी तुम्हें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि तुम उस कौम को शिकस्त दे सकोगे जो अदलो इंसाफ में यकता है और जिसकी तलवार की धाक बैठी हुई है। ज़ईफुल उम्र अब्दुल मसीह ने कहा, तू जो कुछ भी कहना चाहता है कह सकता है, तू फातेह है, हमें कुछ कहने का हक हासिल नहीं क्योंकि हमने तेरे आगे हथियार डाल दिए हैं। मशहूर मौर्रिख अबू यूसुफ ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुल मसीह के मुकालमे लिखते हुए ये भी लिखा है कि अब्दुल मसीह इस कदर बूढ़ा हो चुका था कि उसकी भवें दूध की मानिंद सफेद हो चुकी थीं और इतनी नीचे आ गई थीं कि उनसे उसकी आंखें ढक गई थीं। उसी मौरिख के मुताबिक खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अब्दुल मसीह से मुतासिर हुए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल मसीह से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, 200 साल। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने उस बूढ़े कलादार को और ज्यादा गौर से देखा, जैसे उन्हें यकीन ना रहा हो कि ये शख्स 200 साल से जिंदा है। किसी भी मौरिख ने अब्दुल मसीह की सही उम्र नहीं लिखी। वाकयात से पता चलता है कि उसकी उम्र 100 साल से कुछ ऊपर थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तूने बड़ी लंबी उम्र पाई है, ये बता कि इतनी लंबी जिंदगी में तुमने सबसे ज्यादा अजीब चीज क्या देखी? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, नौशरवां का अदलो इंसाफ। इस दौर में हुकूमत उसकी होती है जिसके बाजू में ताकत और हाथ में तलवार होती है, लेकिन नौशरवां ने अदलो इंसाफ के जरिए लोगों के दिलों पर फतह पाई। तुम कहते हो कि मुसलमान अदलो इंसाफ में यकता हैं? नहीं, मैं नौशरवां को आदिल मानता हूँ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल मसीह से पूछा, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, एक गांव है जहां तक कोई औरत भी सफर करे तो उसके लिए एक रोटी का एक टुकड़ा भी काफी होता है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुम अहमक नहीं हो? मैं पूछ कर रहा हूँ और तुम जवाब क्या दे रहे हो? मैंने पूछा था कहाँ से आए हो? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, अपने बाप की रीढ़ की हड्डी से। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने झुंझुला कर कहा, तुम कलादार बनने के काबिल कब हुए थे? मैंने पूछा है तुम कहाँ से आए हो? अब्दुल मसीह ने फिर जवाब दिया, अपनी माँ के रहम से। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि उस बूढ़े का बोलने का, सोचने का और जवाब देने का अंदाज मजे का खेज सा है, तो उन्होंने तफरीह तबा के लिए उससे वैसे ही सवाल करने शुरू कर दिए। ये सवाल जवाब तकरीबन तमाम मौरिखों ने लिखे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, आगे को। पूछा, तुम्हारे आगे क्या है? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, आखिरत। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम जानते हो कहाँ खड़े हो? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, जमीन पर। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी बेरुखी और लापरवाही देखकर उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो फातेह सालार आला के सामने खड़ा है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मालूम नहीं क्या सोचकर उससे पूछा, तुम किस चीज के अंदर हो? अब्दुल मसीह ने कहा, अपने कपड़ों के अंदर। अब खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आने लगा। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, दुनिया कम अक्लों को तबाह करती है, लेकिन दाना लोग दुनिया को तबाह करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि तुम कम अक्ल हो या दाना, मुझे सही जवाब तुम्हारे लोग ही दे सकते हैं। अब्दुल मसीह ने कहा, ऐ फातेह सालार, चींटी बेहतर जानती है कि उसके बिल के अंदर क्या कुछ रखा है, ऊंट नहीं बता सकता। खालिद बिन वलीद ने चौंक कर अब्दुल मसीह की तरफ देखा। उनका गुस्सा खत्म हो गया। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये शख्स अहमक या कम अक्ल नहीं। खालिद बिन वलीद ने उसे अपने बराबर में बिठा लिया। अब खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदाज में एहतराम था। वो बोले, ऐ बुजुर्ग, कोई ऐसी बात बता जो तू हमेशा याद रखना चाहता है। मौरिख लिखते हैं कि अब्दुल मसीह गहरी सोच में खो गया। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसने कले की तरफ देखा, बोला, मैं उस वक्त को याद किया करता हूँ जब इन कलों के अकब में बहते हुए फरात में चीन के बहरी जहाज बादबान फैलाए आया करते थे। फिर मुझे जो वक्त याद है वो नौशरवां का अहद हुकूमत है। रियाया खुशहाल और मुतमईन थी। कोई झोंपड़ी में रहता था या महल में। नौशरवां का इंसाफ सबके लिए एक था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, खुदा की कसम तू मुसलमानों के अदलो इंसाफ को भी याद रखेगा। अगर तू अपने लोगों के साथ इस्लाम कबूल कर ले तो तेरी और तेरे लोगों की हिफाजत हमारे जिम्मे है। तुम सबको वही हुकूक मिलेंगे जो दूसरे मुसलमानों को मिलते हैं। अगर इस्लाम कबूल करने के लिए तू अपने आप को आमादा नहीं कर सकता तो तुझे और उन तमाम कलादारों को वो जिजिया अदा करना होगा जो मैं मुकर्रर करूंगा। अगर तुझे ये भी कबूल नहीं तो फिर तुमने देख लिया है कि मुसलमान कलों को किस तरह सर करते हैं और उनकी तलवार की काट कैसी है।
अब्दुल मसीह ने कहा, हमसे कुछ और मांग, हम देंगे, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे, बता जिजिया कितना होगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुझ जैसे दाना से मुझे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। कुफर ने तुझे शिकस्त तक पहुंचाया है। उस अरबी को मैं कम अकल समझता हूँ जो अरबी रास्ते से हटकर अजमी रास्ता इख्तियार कर ले। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के इन अल्फाज ने न अब्दुल मसीह को मुतासिर किया, न दूसरे किसी कलादार या सरदार को। वो अपने इनकार पर कायम रहे। जब खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें जिज़िये की रकम बताई तो उन्होंने उसे फौरन कबूल कर लिया। ये रकम 1,90,000 दिरहम थी। जो अहदनामा तहरीर किया गया उसके अल्फाज ये थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अहदनामा खालिद बिन वलीद ने हीरा के सरदारों अदी बिन अदी, अमर बिन अदी, अमर बिन अब्दुल मसीह, अयास बिन कब्सिया अल्तानी और हीरी बिन अकाल से किया है। इस अहदनामे को हीरा के लोगों ने कबूल कर लिया है और अपने सरदारों को इसकी तकमील का जिम्मेदार ठहराया है। इस अहदनामे के मुताबिक अहले हीरा खिलाफत मदीना को 1,90,000 दिरहम सालाना अदा करेंगे। ये जिजिया हीरा के पादरियों और राहिबों से भी वसूल किया जाएगा। सिर्फ अपाहिजों, नादार अफराद और तारिकुद्दुनिया राहिबों को ये जिजिया माफ होगा। अगर ये जिजिया बाकायदगी से अदा किया जाता रहा तो अहले हीरा के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार मुसलमान होंगे। अगर मुसलमानों ने इस जिम्मेदारी में कोताही की तो जिजिया नहीं लिया जाएगा, और अगर अहले हीरा ने इस अहदनामे की खिलाफ वर्जी की तो मुसलमान अपनी जिम्मेदारी से बर्री समझे जाएंगे। ये माहिदा रबीउल अव्वल 12 हिजरी में तहरीर हुआ। इस्लामिक शॉर्ट स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।